Okay, I have some problems today to discuss, and I hope that you will able to solve these problems. Okay, many of them I do not have solutions, so which you need to solve on your own. Okay, so first problem today we will mostly discuss about differentiability, maxima, minima, and all. And today is our last class of differential calculus. In the next class I will discuss, if time permits I can discuss in today itself, but in the next class surely I will discuss about improper integrals. Then I will discuss one day about eigenvalue, eigenvectors and all. Okay, and then I will discuss the problems on differential equations. So here what is the problem? The question one is, you need to show that the function fxy equal to x square plus y square is differentiable at a comma b. Now for differentiability of fxy, we have to find epsilon 1 and epsilon 2, two functions of h comma k, such that f of a plus h comma b plus k minus fab, this is equal to ah plus bk plus h epsilon 1 plus k epsilon 2. So now in epsilon 1 tends to 0 and epsilon 2 tends to 0, as h comma k tends to 0, where fx a comma b equal to a and fy a comma b equal to b. You need to show this so what you need to show, if you determine this thing, that this f of a plus h comma b plus k minus f of a comma b equal to ah plus bk plus h epsilon plus h k epsilon 2, and epsilon 1 epsilon 2 tends to 0, as h comma k tends to 0, where fx a comma b equal to a and fy a comma b equal to b. Now so first of all, a plus h b plus k, f of a plus h b plus k will be a plus h whole square plus b plus k whole square, and f of a comma b is a square plus b square. Then now fx a comma b, using definition, not by technique of Yugadik, so we will just use definition here. Limit h tends to 0 is f of a plus h comma b minus f a b divided by h. This is limit h tends to 0. A plus h comma b is a square plus 2ah plus h square plus b square minus a square minus b square divided by h. So a square b square cancels out. 2ah plus h square will give you 2a plus h, and epsilon h tends to 0, you will get only 2a. Similarly, fy a comma b is 2b. Now f of a plus h comma b plus k minus fab, this is a plus h whole square plus b plus k whole square minus a square minus b square. So this is nothing but 2ah plus h square plus 2bk plus k square. Now 2a and 2b are nothing but this a and b, where a is equal to fx a comma b and b is equal to fy a comma b. Now so that is what is will be your epsilon h square. So h into epsilon 1, and this k square I can write k into epsilon 2, where epsilon 1 is equal to h and epsilon 2 equal to k. Now as h comma k tends to 0, this epsilon 1 and epsilon 2 tends to 0. So what we get? We get fxy equal to x square plus y square is differentiable at any point a comma b, and it is true for any polynomial function. Next I have few problems. I hope that you can solve it. You need to show that this function fxy x square minus y square by x square plus y square is differentiable at the point 0 comma 0. So first of all, you need to determine the partial derivatives fx and fy. Okay, if you determine the partial derivatives at the point 0 comma 0, then you determine partial derivative with respect to that. Then what you need to show? You need to show f of 0 plus h comma 0 plus k minus f00, that can be written in terms of similarly, जैसे हमने यहाँ पे किया, बस a एंड b की जगह पे हमें लेना होगा 0 कॉमा 0. ठीक है, युगादिक एक बार ट्राई करो, इसे क्वेश्चन 2 को ट्राई करो. ओके सर पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्मूला से निकालना है.
हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव 0,0 पे फिर कैसे निकालोगे तुम? फॉर्मूला से निकालना होगा ना, एफ ऑफ एच कॉमा 0 माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई एच लिमिट एच टेंस टू 0, उससे तो ईजी हो जाएगा ना। पार्शियल डेरिवेटिव तो 0 आएगा। डेफिनेशन के बिना कैसे 0,0 पे निकालोगे? 0,0 पे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिफाइन नहीं है ना, कैसे करोगे फिर आप? समझे मेरी बात? ओके सुमित्रा, आप थोड़ा लेट हो गए। आप एक काम करो, ये क्वेश्चन 2 को सॉल्व करो। यू नीड टू सॉल्व दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 0,0। समझ में आ रहा है सुमित्रा कैसे करना है? Is number 2 continuous and differentiable? And number 3, if I put y equal to mx हम्म for continuity. नहीं कंटिन्यू, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, no need for putting OMX, just use Taylor series theorem. In the above you will get r cube cos cube theta minus r cube sin cube theta, and here you will get r square. So in the above you will get r cos cube theta minus r sin cube theta. As r tends to 0, this function tends to 0. So that means this function is continuous. Now you determine partial derivatives, but you show that this function is not
differentiable at the point 0, 0. I just check that whether I have my iPad intact. हो पाया? देखो एप्सिलॉन 1 h कॉमा के आएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और एप्सिलॉन 2 h कॉमा के आएगा माइनस के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो उधर से आप दिखा सकते हो कि दिस फंक्शन का जो एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 है, दैट एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 डज नॉट टेंड्स टू 0 because if you choose k equal to mh path. Yugadik, did you understand anything or simply you did not understand anything? Nothing. Yes, I understood. सुमित्रा हो गया ये मैथ जो थर्ड वाला है? सुमित्रा सर y इक्वल टू mx में ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? कॉन्टिन्यूअस प्रूफ हो गया ना, हाँ और पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया, हाँ fx y हो गया है। तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? एप्सिलॉन फिर क्या करना है? एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस एफ 00। अभी नहीं कर पा रही हो? देखो एफ ऑफ एच कॉमा, देखो 0 पॉइंट पे है ना, तो ये जो एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, ये क्या बनेगा? एफ एच कॉमा के माइनस एफ 00। नाउ एफ एच कॉमा के इज एच क्यूब माइनस के क्यूब बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एंड एफ 00 इज 0। सो एफ एच के माइनस एफ 00 इज जस्ट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करो। देखो सुमित्रा सुन रहे हो ना, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो। एक्स क्यूब एक्स एप्सिलॉन एच इंटू एप्सिलॉन 1 के, तो फर्स्ट आपका एच इंटू एप्सिलॉन 1 एच के आएगा, सेकेंड आएगा प्लस के इंटू एप्सिलॉन 2 एच के। नाउ दिस फ्रॉम दिस फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इधर से आएगा एच क्यूब प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इधर से आएगा माइनस के क्यूब बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नाउ एच क्यूब बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज योर एच इंटू एप्सिलॉन 1 के एच कॉमा के।
तो आपका एप्सिलॉन 1 h कॉमा के क्या आएगा, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. अब नाउ पुट k इक्वल टू एम एच, तो दैट विल डिपेंड अपॉन m. So then therefore your epsilon 1 does not tends to 0 as h comma k tends to 0. Is it clear now? Yes, sir. तो करो उसको. सुमित्रा आप कर लिया पूरा. आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट देन. एक्चुअली मेरा आईपैड में चार्ज देना मैं भूल गया, नहीं तो मैं खुद आपको दिखा देता. Yes, yes, sir. ठीक है चलो. अच्छा यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स है. नियर द पॉइंट 1,2 इज एफ एक्स वाई. नियर द पॉइंट एफ एक्स वाई इज मोर सेंसिटिव टू चेंजेस इन एक्स और टू चेंजेस इन वाई. what you need to determine, you need to just determine del f del x and del f del y. you just to determine the increments. ठीक है, तो जिसका इंक्रीमेंट ज़्यादा आएगा that will give you that answer. so just simply इसका डेरिवेटिव निकालो. एफ एक्स वाई does determine derivative del f del x and then del f del y. ठीक है. Determine. Yugadik, determine del f del x and del f del y. The del f del x is 2x minus y. And what is del f del y? Minus x plus 2y. Now determine their values at the point 1, 2. Tell me which is. So del f del y, del f del x is coming to be 0. Del f del x is coming to be 0. Del f del x is coming to be 0. Del f del x will come to be 1. Zero. Okay. हाँ, yes, 0. Sorry, Yugadik. And then what will be del f del y? So I am calculating that. हाँ, del f del y calculate करो 1, 2 पॉइंट पे. So 3. तो which one is greater? Del f del y. So this function is sensitive to changes in the y direction mode. Okay. Now swap the point. Now consider the point to be 2, 1.
सर आंसर स्वैप हो गया, मतलब अभी डेल एफ डेल एक्स के लिए 3 आया है, डेल एफ डेल वाई के लिए 3। तो अब कौन सा अच्छा है, कौन सा के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है एक्स डायरेक्शन में? Okay, now move to the question 6. A certain function z equal to fxy has values f2, 3 equal to 5, fx2, 3 equal to 3, fy2, 3 equal to 7. Find an approximate value of f1, 98, 1.98, f 3.01. So what you have to do, Sumitra, for this function? सर वो अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाना है क्या? एग्जैक्टली, वेरी गुड, लगा दो और आंसर बता दो मुझे फटाफट। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स डायरेक्शन में इंक्रीमेंट है -0.02 एंड वाई डायरेक्शन में +0.01, ठीक है। बस टेलर का वो अप्रोक्सीमेशन का वो फॉर्मूला लगा दो, एल एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई प्लस डेल्टा एक्स एफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई एफ वाई एफ एक्स वाई, सॉरी एफ वाई एक्स वाई। तो आपका डेल्टा एक्स हो गया -0.02, क्योंकि देखो 2 से ये थोड़ा कम है, 0.02 कम है, और यहाँ पे 3 से 0.01 ये ज़्यादा है। फॉर्मूला फिर से बोल सकते हो? लीनियर का फॉर्मूला इजी है, सुमित्रा बताओ व्हाट इज द लीनियर फॉर्मूला, लीनियर अप्रोक्सीमेशन? That is f of x0 y0 हाँ plus partial derivative of fx इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ वाई इंटू डेल्टा वाई, हाँ and here delta x is -0.02. Be careful, you need to put -0.02 and instead of delta y you need to put 0.01 and then just calculate, because all other values here are given, you just need to calculate. The answer will be 5.01. सर 5.03 आ रहा है। सर आंसर 5.03 आ रहा है। so 5.01 Yes, 5.01. Jyotik, you are doing mistakes in arithmetic calculation. Be careful, yaar. Okay, next problem, question 7, 8, very easy. I will left you for your exercise. Next problem, I have already discussed this kind of one problem, 2 3 problems. फटाफट question 9 try करो. If w equal to 2y e की power x minus ln z, where x equal to ln t square plus 1, y equal to tan inverse t and z equal to et, then determine dw dt at t equal to 1. बस क्वेश्चन 9 को यूज ट्राई करो, 10 एंड 11 घर में करना, ठीक है। फटाफट डिटरमिन करो, बस y के जगह पे यहाँ पे w पे पुट x एंड y वैल्यू, देन क्लियरली टेक डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t. आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स. सर टोटल डेरिवेटिव बाय अप्लाइंग टोटल डेरिवेटिव फॉर्मूला नहीं, सीधा फॉर्मूला इसमें डाल दो, वो टोटल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, ये बस सीधा पुट करके कर लो.
दोनों में सेम आंसर आएगा, जो मेथड लगाना मर्जी करो, ठीक है। क्वेश्चन 9 10 फटाफट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन करके भी करो। 1 plus 40 tan inverse t. 1 plus 40 into tan inverse t. Yes, sir. I do not know the answer, you better know, so move to the next problem, question 10. dw by dt equal to 1. T equal to 1. Very good. So you have just x plus y is cos square t plus sin square t is 1. So 1 by t, there will be only t. Okay. यस सर, मेरा भी वही है। हाँ, आपका भी तो वही आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 मैं घर के लिए रख दूं या आप अभी करोगे? एक्चुअली ये No, sir, proceed to आप next question. ये काम करना, ये सारे प्रॉब्लम्स को वो चेन रूल जो मैंने सिखाया था ना, वो चेन रूल लगा के करना। ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये बच्चे वाले काम है, आपको ये चेन रूल सिखाने के लिए ही ये प्रॉब्लम्स दिया गया है। आई एम जस्ट गिविंग यू, तो चलो ठीक है, अभी हल्के मूड में है तो चलो इसको एज ए सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। बट यूजुअली दिस प्रॉब्लम्स आर मेंट फॉर क्या कहते हैं उसे, सब्स्टिट्यूशन, सॉरी चेन रूल। ओके, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 11 आप बाद में करना, ये मैं डाल दूंगा आज ही, ठीक है। सुमित्रा कह रहे थे कि सर ये दे दो, ये प्रैक्टिस सेट दे दो, तो अभी चलो प्रैक्टिस सेट बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन 12 ट्राई करो। क्वेश्चन 12 थोड़ा आपको देख के समझ के करना होगा। क्वेश्चन 12 मैं होम टच देता हूँ, ठीक है, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मुझे बताना कहाँ पे गड़बड़ी आया, कहाँ गड़बड़ी नहीं आया नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन 12 होम टास्क लिख लो। क्वेश्चन 12 लिखूंगा, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन 13 करो, ये इजी है, अभी फटाक से हो जाएगा। ये टाइम लगेगा क्वेश्चन 12 करने में।
सर चेन रूल डाल के। नहीं, क्वेश्चन 13 तो इजी है, क्वेश्चन 13 तो बहुत इजी है। हाँ करो, चेन रूल डाल के करो। u इक्वल टू एक्स माइनस वाई, v इक्वल टू वाई माइनस जेड एंड जेड w इक्वल टू जेड माइनस एक्स मान लो। ठीक है, बहुत इजी है, 2 मिनट में हो जाना चाहिए सुमित्रा। ये सर हुआ। जीरो आ गया, कैसे आ गया? जस्ट जैसे देखो x माइनस वाई, तो यहाँ से डेरिवेटिव निकालोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, इधर से माइनस आ जाएगा, तो उसको जैसे जैसे आप मल्टी करते जाओगे तो वो बन जाएगा एफ यू माइनस एफ डब्ल्यू, ऐसे साइक्लिक पे बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे साइक्लिक पे बन जाएगा देन यू कैन जस्ट इजीली टेल दैट व्हाट विल बी द अल्टीमेट फेट इफ यू सर जस्ट। मेरा भी हाँ हाँ वो ठीक है, ये इजी प्रॉब्लम है यार, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं था। सर लेके मैंने थोड़ा अलग तरीके से की है। कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 14 ट्राई करो, देन क्वेश्चन 15 आई विल डिस्कस द लास्ट प्रॉब्लम। ये 3 प्रॉब्लम आपके लिए होम टास्क हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम आई हैव सॉल्यूशन, वो थोड़ा टफ है सबसे। करो क्वेश्चन 14 करो, जल्दी से करो। इसमें बस 2 बार डेरिवेटिव लेना है चेन रूल लगा के। ठीक है, सर हो गया। हैं हो गया। हाँ हाँ, 1 माइनस 1 आया, 1 माइनस 1 0, उसको सेटिस्फाई कर रहा है वो इक्वेशन। अरे बाप रे युगादिक, तुम तो बहुत फास्ट हो गए हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? पता नहीं सर। चलो तुम एक काम करो, अपने कॉपी में कहाँ पे किया हो तो मुझे वो वीडियो कॉल करके उस पर दिखाओ।
दिखा सकते हो? उसका फोटो खींचो और फिर मुझे दिखाओ तुमने क्या किया, स्क्रीन शेयर करके। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। ठीक है, समझ गए? सर दिखा रहा हूँ। हाँ, फोटो खींचो और पीडीएफ करके दिखाओ। सुमित्रा आपका चल रहा है ना? कर रहे हो ना इसको सॉल्व? मैं सर चेन रूल अप्लाई करके कर रही हूँ। हाँ, उसका पता नहीं, मैं उसने क्या किया देखता हूँ एक बार। उल्टा पुल्टा तो नहीं किया, पता नहीं क्या कर रहा है। शायद गलत हो गया होगा। सर करो स्क्रीन शेयर। आ, करो। स्क्रीन शेयर करो, मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग करता हूँ। चलो करो। सर स्क्रीन दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अरे तुम ये क्या उल्टा पुल्टा कर रहे हो यार? डब्लू थोड़ी इसको ऐसे यू प्लस ये है डब्लू, ये तो तुम युगाधिक पूरा उल्टा पुल्टा कर रहे हो मैथमेटिक्स के नाम पे। सॉरी सर। सुमित्रा अच्छे से इसको चेन रूल लगा के करो और फिर दिखाओ कि कैसे करना है। ठीक है, मुझे डाउट हो गया कि इतना जल्दी हो गया, मतलब युगाधिक ने उल्टा पुल्टा किया है कुछ।
हुआ? सुमित्रा इतना इजी प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे हो, बस एक बार चेन रूल ही तो लगाना है। सर लेंथी हो रहा है, डेल स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल एक्स स्क्वायर अभी तक आया, फिर उस विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, मतलब डेल स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल एक्स स्क्वायर जो आया, डेल डब्ल्यू बाई डेल यू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल यू स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डेल स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल यू डेल वी प्लस एक्स वाई इंटू डेल स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल वी डेल यू प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल वी स्क्वायर, और फिर सेकेंड डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। मतलब लेंथी हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको रहने दो। आई विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसको अच्छे से देखना, ठीक है, अच्छे से देखना, हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में कोई गलती नहीं है। मैंने लास्ट ईयर शायद या उससे पहले मैंने एक बार मैंने क्लास में भी इसको सॉल्व किया था, ठीक है। कहीं पे थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना, कुछ काट कुट हो जाएगा इधर उधर से, जहाँ तक मुझे याद है सारे मिक्स डेरिवेटिव काट हो जाएंगे इधर उधर से। चलो कोई बात नहीं। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इसे कहते हैं, वी विल यूज ऑयलर्स थ्योरम। ऑयलर्स थ्योरम क्या कहता है? ऑयलर्स थ्योरम कहते हैं कि कोई भी फंक्शन सेकंड और दो वेरिएबल का ले लो, एफ एक्स वाई जी एक्स वाई कुछ भी ले लो, इफ़ यू कंसीडर ए फंक्शन ऑफ सेकंड वेरिएबल एफ एक्स वाई, टू वेरिएबल्स एफ एक्स वाई, तो क्या होता है उसमें, उस पर जो एक्स डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ डेल वाई इक्वल टू बन जाता है एन इंटू एफ। उसमें एफ एक्स वाई क्या है? एफ एक्स वाई है, उसे कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस आर होमोजीनियस फंक्शन? थोड़ा ध्यान से सुनो। एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इफ इट कैन बी रिटन एज टी की पावर एन इंटू एफ एक्स वाई देन इट इज कॉल्ड ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस पे ये आपका एफ एक्स वाई है, तो व्हाट विल बी योर एफ टी एक्स कॉमा एफ टी वाई? योर एफ टी एक्स कॉमा एफ टी एक्स कॉमा टी वाई बनेगा टी एक्स होल स्क्वायर प्लस टी वाई होल स्क्वायर, तो बन जाएगा टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखा टी स्क्वायर इंटू एफ एक्स वाई बन गया। तो दैट मीन्स दिस इज ए ऑयलर्स फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। गॉट माई पॉइंट? जैसे कि यहाँ पे फंक्शन फॉर द फंक्शन u इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, तो आई नीड टू शो दैट x u x प्लस y u y इक्वल टू माइनस हाफ कॉट u। सो पहले एक सब्स्टिट्यूशन लगाओ। क्या? कौन सा सब्स्टिट्यूशन? दोनों u लिखो कॉस इनवर्स x प्लस वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। नाउ राइट कॉस u इक्वल टू x प्लस वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। ओके, तो देखो ये जो x कॉस u बन जाएगा ना आपका कॉस u, तो वो कॉस u हो जाएगा, यस, तो वो कॉस u बन जाएगा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री हाफ, ठीक है। कॉस u बन जाएगा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री हाफ। सो सिंस, तो वहां से आप क्या लिख सकते हो? वहां से आप लिख सकते हो कि x u को u सिंस, तो आपका हो गया cos u इज योर होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। तो cos u के ऊपर आप फॉर्मूला लगा दो, ऑयलर्स फॉर्मूला। तो पहले cos u को आप डेरिवेटिव करोगे x इंटू कॉस यू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y इंटू कॉस यू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो बन जाएगा आपका हाफ इंटू कॉस यू, ठीक है। अब जैसे ही कॉस यू का, यहाँ पे देखो कैसे कर रहे हैं, आपका u आपने ले लिया कॉस इनवर्स x प्लस वाई, हाँ, तो आपने ले लिया कॉस इनवर्स x प्लस वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, thus cos u becomes this. Now f is homogeneous function of degree half as f of tx comma ty is tx plus ty by, ओह सॉरी स्क्रीन शेयर करना भूल गया ना मैंने। देखो ठीक है, ये इट इज योर प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम, यू नीड टू सॉल्व। इज इट विजिबल नाउ सुमित्रा? Yes, sir. Okay, you got it? Is it visible to you? Yes, sir. Okay, now
given u equal to cos inverse x plus y by square root of x plus square root of y, thus your cos u becomes x plus y by square root of x plus square root of y equal to fxy से. Now f is homogeneous function of degree half as f tx comma ty equal to tx plus ty by square root of tx plus square root of ty equal to square root of t x plus y by square root of x plus square root of y. तो ये आपका बन गया square root of t into fxy. So that means it is a homogeneous function of degree half. Now using Euler's theorem on homogeneous function, we get x f x plus y f y equal to f by 2, and your f is cos u. Now x del cos u del x plus y del cos u del y equal to cos u by 2. तो cos u का जैसे ही del del x करोगे आपका आ जाएगा sin u into ux, u with respect to derivative with respect to x u का. Similarly यहाँ पे आ जाएगा minus y sin u uy cos u by 2. तो यहाँ से आपको आ जाएगा एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू माइनस कॉस यू बाई 2 साइन यू, दैट मीन्स माइनस कॉट यू बाई 2. इज इट क्लियर सुमित्रा? तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपके हो जाएंगे ना, ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं. यस सर. बढ़िया बढ़िया. जैसे प्रॉब्लम ये देखो, ये वाला प्रॉब्लम बताओ. दिस इज योर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, दिस इज योर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1. सो दैट मीन्स एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इज जस्ट सिंपली यू. लेकिन अगर आपको डेरिवेटिव निकाल के करना होता तो कितना दिक्कत होता है ना, समझे? चलो नाउ यूजिंग ऑयलर्स एक्सटेंशन थ्योरम, यहाँ पे आपको फिर से ऑयलर्स थ्योरम लगाना है. यहाँ पे ऑयलर्स थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई एंड देन माइनस कॉट यू बाई 2 डी डी यू ऑफ माइनस कॉट यू बाई 2 माइनस 1. तो इसका ये होता है ये आपका वो फॉर्मूला बन जाता है. व्हाट इज दिस फॉर्मूला? दैट मीन्स माइनस कॉट यू बाई 2 डी डी यू माइनस कॉट यू बाई 2, यहाँ पे आता है माइनस 1. दिस इज योर. सो जस्ट रिमेंबर व्हाट एवर फंक्शन कम्स इन दिस साइड व्हेन यू यूज ऑयलर्स एक्सटेंशन थ्योरम. एक्सटेंशन थ्योरम में आ जाता है एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई minus cot u by 2, that means this nf term into ddu of nf minus 1. now जैसे एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स हुआ प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई हाफ कॉस एक्स स्क्वायर यू माइनस 1. इस पर थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन किया तो आपका बन गया यू एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई इक्वल टू माइनस 1/4 कॉस यू कॉस 2u बाई साइन क्यूब यू. ठीक है? देखो ये क्लियर है सुमित्रा? तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाऊं. सर व्हिच क्वेश्चन? क्वेश्चन 16. यस सर. एक सेकंड रुको, हाँ मैं बताता हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे करना है. देखो देखो लेट u इक्वल टू एक्स की पावर 4
प्लस वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स वाई बाई एक्स. So first of all देखो f is a homogeneous function of degree 2 and g is a homogeneous function of degree 1. I think it is clear to you, right? Now Euler's theorem, use Euler's theorem क्योंकि ये देखो एडिटिव फंक्शन है आपका, दो होमोजेनियस फंक्शन का एडिटिव फंक्शन है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है और फिर ये जो होगा वो अलग अलग से कर लोगे तब भी सेम ही रहेगा, है ना, बिकॉज इट इज ए लीनियर सम ना, डिफरेंशिएबिलिटी इज ए लीनियर थिंग. तो जिस दो साइड से आप लगा लोगे तो इसका बन जाएगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2xy एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई. तो इधर से आपका बन जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू एफ इक्वल टू 2f एंड एक्स स्क्वायर जी एक्स एक्स 2xy जी एक्स वाई जी वाई स्क्वायर जी वाई वाई बन जाएगा 1 इंटू 1 माइनस वाई इंटू जी. तो इधर से बन जाएगा 0. तो एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई विल बी सिंपली दिस 2 इंटू एफ, दैट मीन्स दिस टर्म. ओके, अब थोड़ा इजी प्रॉब्लम, बाकी जो ये भी प्रॉब्लम्स है आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व ऑन योर ओन. ये जो दो प्रॉब्लम है, ठीक है, क्वेश्चन 15 का जो दो प्रॉब्लम्स है, फटाफट ये निकालो. प्रॉब्लम 1, फाइंड द लोकल मैक्सिमा मिनिमा एंड सैडल पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. Sir, point is minus 3, 3. Okay. And if x is 2, discriminant is 3 greater than 0. Means both.
minus 3 3 is a minima, right? Yes, sir. Okay, so how to determine critical points? Critical points are solution of fx equal to 0 and fy equal to 0. Solving fx equal to 2x plus y plus 3 equal to 0, fy equal to x plus 2y minus 3 equal to 0. You solve this, solving these gives x equal to minus 3, y equal to 3. Therefore critical point is minus 3 comma 3. Now fxx minus 3 3 equal to 2, fyy minus 3 comma 3 equal to 2, fxy equal to minus 3 comma 3 equal to 1. And applying second derivative test, fxx fyy minus f square xy equal to 3, which is greater than 0 at minus 3 comma 3. Also fx is greater than 0 as already mentioned by Sahu. So that means this is a local minimum at the point minus 3 comma 3, and minus 3 point is minus 5. Next problem, x square plus 3xy plus 3y square minus 6x plus 3y minus 6. इसको करो. And this one also local minimum. What is the point? Point is 15 minus 8. Okay. Critical points are fx equal to 0, fy equal to 0, same. Point is 15 minus 8. आपको बस fxx, fyy, fxy निकालना है. Applying second derivative test, the discriminant is greater than 0 as well as fxx at the point greater than 0. So it is a local minima and the point functional value at that minima is minus 63. Okay, ये वाला प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ऐसा एक प्रॉब्लम है ना. सो आई विल लीव इट. वी नीड टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा ऑफ द फंक्शंस ऑन द गिवन डोमेन. तो पहले हम इंटीरियर पे निकालेंगे, फिर ये तीनों लाइंस पे निकालेंगे, और फिर हम ये 3 पॉइंट पे निकालेंगे, है ना. चलो करो सुमित्रा, करो. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 on the closed triangular plane bounded by lines x equal to 0, y equal to 4 and y equal to x in the first quadrant.
ट्राई करो सुमित्रा, जल्दी से ट्राई करो, इजी प्रॉब्लम है। पहले डेल एफ डेल एक्स डेल एफ डेल वाई निकालो, फिर पॉइंट्स निकालो, और फिर उसके बाद जो 3 स्ट्रेट लाइन है उसके लिए x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो y के लिए डी एफ डी वाई करोगे तो मिल जाएगा। फिर y इक्वल टू 4 कर दोगे, फिर डी एफ डी एक्स करोगे, फिर y इक्वल टू एक्स करोगे तो फिर से डी एफ डी एक्स करोगे तो उसको इक्वेट करके 0 करके कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, है ना। फिर उन पॉइंट्स पे आप देखो वैल्यू क्या आ रहा है, और फिर तीनों जो कॉर्नर पॉइंट है उस पर देख लो। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, तो इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या करना होगा, एफ एक्स इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 2x, एक्स इक्वल टू माइनस 2y। सो यू गॉट क्रिटिकल पॉइंट टू बी 0 बट इट इज़ नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, तो निकालने का कुछ वैल्यू नहीं है। अब देखो, अब हमने पुट किया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मीन्स दिस y एक्सिस। नाउ इफ वी पुट x इक्वल टू 0, so that then it becomes y square plus 1, this means this you get 2 points, y equal to 0, and you have already so what kind of there are, you will get you get point f00, so that f00 is equal to 1 in this point, f00 equal to 1। तो ये तो ऑलरेडी कॉर्नर पॉइंट में आ गया, तो 3 कॉर्नर पॉइंट के लिए हम अलग से निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी क्या पॉइंट आ रहा है देखते हैं। तो जैसे ही हम ए बी मतलब एक्स वाई क्लियर करेंगे तो वाई को 4 पुट कर देंगे तो विल गेट f2,4, f44, f04, सबके लिए इन दोनों के लिए 17 और f24 पे 13। अब जो 44 और 04 है दे आर ऑलरेडी दिस बाउंड्री पॉइंट्स, दिस 04 एंड दिस इज 44, सो वी आर गेटिंग 17 देयर। And also on OB, that means you put y equal to x, then you get it to be x square plus 1. So then you will get once again 0 0. So 0 0 equal to 1. So that means your critical points are these 2 4 0 4 0 0. These are your all points of local maxima minima. So what is that absolute max? The absolute max is 17, and this 17 is achieved on 0,4 point and f4,4 point. That means these 2 corner points you are getting maxima 0,4 this, and here you will get the minima. Okay, so there is a theorem that if you have a bounded function and if you have certain corner points, then you will have absolute maxima and absolute minima in only on those corner points. These kind of geometric shape are called convex polygon. Convex means you take any 2 point, then the straight line joining that points will lie entirely on that domain. So for that kind of graphs you will only have the function domain, or you will only have the function value at these corner points. Is it clear? Next I will move to the next problem. Okay, find the, is it clear Sumitra whatever I have discussed till now? Hello सर प्लीज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है वो वाला आप बताइए। this is a convex polygon. Convex polygon means, ये हमने तो प्रूफ कर लिया। अब convex polygon means a polygon, this is a triangle, right? So this is a polygon, तीन साइड वाला polygon है ये। अब হ্যালো, হ্যাঁ আমি ক্লাস করছি, পরে ফোন করব। হ্যাঁ আমি ক্লাস করছি, পরে কথা বলবো। আমি ক্লাস করছি, হ্যাঁ মেসেজ করবো তো হোয়াটসঅ্যাপে। So convex polygon, or you can say this convex domain. So in this, why it is convex domain? Because within this triangle, whenever you take any 2 point, you join those points in a straight line, that straight line will lie on the domain itself. Okay, so that kind of polygons or domains are called convex domains. So whenever you consider any function and you try to determine the maxima and minima on those domains, you will only get maxima and minima in the corner points, itself. Okay, is it clear?
यस सर। दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स ना। जैसे ही देखो हमें कॉर्नर पॉइंट में ही मैक्सिमम मिनिमम मिला, दो F0,4 F4,4 और इधर F00 में, समझ गए? ठीक है। नाउ प्रॉब्लम इज फाइंड द मैक्सिमम ऑफ द वैल्यू साइन ए साइन बी साइन सी इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 180 डिग्री। तो सी को कैसे किया हम लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एक्स, एंगल बी इक्वल टू वाई, एंड सी एंगल सी को हम रिप्लेस कर देंगे पाई माइनस एक्स माइनस वाई, रेडियन में बिठाना होगा, ठीक है? सो पाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो आपका फंक्शन बन गया साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू साइन पाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो साइन पाई माइनस एक्स माइनस वाई क्या होता है? साइन पाई माइनस एक्स माइनस वाई होता है, क्या होता है साइन? होता है कॉस साइन एक्स प्लस वाई। ओके, वेरी गुड। तो वो बन जाता है क्या आपका साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है? अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो ये आपका बन गया साइन एक्स साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई, देन टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एंड डिटरमाइन एक्स एंड वाई। तो आपका डेल एफ डेल एक्स के साथ जीरो करो, डेल एफ डेल वाई को जीरो करो। सर हाउ टू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स? मुझे एफ एक्स मिला साइन
fx, हाँ sin y into sin 2x plus y, कैसे क्रिटिकल fy पॉइंट्स में, निकालते हैं? एफ एक्स और एफ वाई को क्या करना होता है? जीरो के साथ हाँ इक्वेट नहीं करना इक्वल टू होता? जीरो हुआ, लेकिन एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे अरे उसमें दो से? वैल्यू, दो वेरिएबल है ना, तो एक्स एंड वाई दो हाँ इक्वेशन है, डेल एफ डेल एक्स इक्वल टू जीरो, डेल एफ डेल वाई इक्वल टू जीरो, हो जाएगा एक्स वाई के, उसमें क्या बड़ी बात है? नहीं आ रहा? ट्राई करो, ट्राई करो। चलो चलो मैं देखता हूँ। देखो, एफ एक्स वाई साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई, ये बन गया साइन वाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा, हाँ ये ब्रैकेट मिस हो गया। तो साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब जीरो का मतलब है साइन 180 डिग्री, और एफ वाई इक्वल टू जीरो सिमिलरली देता है आपको साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स प्लस टू वाई। तो आप अगर x को जीरो कर लोगे तो ट्रायंगल का एक एंगल तो जीरो हो नहीं सकता, तो साइन एक्स जीरो नहीं हो सकता, तो डेट मीन्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो x एंड y दोनों बन जाएंगे 60 डिग्री। इज इट क्लियर? क्लियर नहीं है, मैं 2 मिनट देता हूँ, आप अच्छे से देखो सुमित्रा, मैं 2 मिनट आके पूछता हूँ। हाँ सर 3√3/8, 3√3/8। 3√3/8, रूट all 3। angles are 60, हाँ रूट then 3 by putting x equal to 60, y equal to 60 and pi minus x plus y also 60.
वेरी गुड, और वेरी z गुड। इक्वल टू 60। वेरी गुड। तो आपका बन गया 3√3/8। वेरी गुड। आप लाग्रांजियस मल्टीप्लायर मेथड का एप्लीकेशन करना है, करो, इसको सॉल्व करो। यूजिंग द मेथड ऑफ लाग्रांजियस मल्टीप्लायर्स फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई टेकन ऑन द एलिप्स। तो आपका रिस्ट्रिक्शन आ गया x²/8 प्लस y²/2 इक्वल टू 1। सर क्रिटिकल पॉइंट लाने में प्रॉब्लम आ रहा है। देखो gxy इक्वल टू, दिस इज आवर लास्ट प्रॉब्लम टुडे, ओके। gxy is x²/8 plus y²/2 minus 1 and use gradient of f equal to lambda gradient of g, दैट मीन्स ग्रेडियंट ऑफ ए मतलब सिम, हम उसको अलग सिंबल से लिख रहे हैं बस। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ अगर करोगे तो यू विल गेट इट, जस्ट डेल एक्स ही निकाल रहे हैं हम, मतलब ग्रेडियंट को इक्वेट कर देंगे। तो जैसे हम डेल एक्स डेल वाई को इक्वल टू नहीं करते हैं, बस वही कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा अलग रोटेशन से लिखा है।
सो y आपका आ रहा है डेल लैम्डा स्क्वायर बाई वाई बाई 4, तो y इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू +-2. So there are two solutions. Now solution 1, if y equal to 0, that will give you x equal to 0 as x equal to lambda y, but 0 0 does not satisfy the ellipse. So therefore if y not equals to 0 and lambda equals to +-2 and x equal to then +-2y, substitute this in gxy equal to 0, you will get +-2y whole square by 8 plus y square by 2 equal to 1. So therefore you will get y equal to +-1. So fxy takes its extreme values on the ellipse at the four corner points +-2 1 +-2 -1, and the extreme values are therefore फंक्शन आपका क्या है एक्स वाई. तो आपके पास 4 पॉइंट मिल गए क्रिटिकल पॉइंट 2 1 -2 1 2 -1 एंड -2 -1. सो 4 पॉइंट्स पे आपका जो वैल्यू है एक्स वाई, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा जब आपका वैल्यू आएगा 2 1 और -2 -1, क्योंकि तब प्रोडक्ट करोगे तो आपका बन जाएगा 2 और मिनिमम वैल्यू बन जाएगा आपका -2 सिमिलरली. सुमित्रा इसको अच्छे से देख लो. हाँ देखो मैं तुम्हें 2 मिनट टाइम देता हूँ. Is it clear, Sumitra? Is it clear till now? Is it clear? Hello? Is it clear? Both of you? Yes, sir. Okay. Sumitra, is it clear? Yes, sir. Okay, so should I continue or should I stop? I am stopping now, okay? Sir, Yes. लास्ट क्लास का क्वेश्चन नंबर 11 जो होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 11 शायद. You just put me an email. I am writing an email ID. Okay? Yes, sir. I need to go my lab. I need to do some work. So this is my email ID. I am writing here. Sir, Question number and what is your problem, what you have solved, I will check. This is my email ID. Just write down it quickly. Is it okay? You have written my email ID? Yes, sir. Sumitra, you have written my email ID? Put me an email, okay? Hello? Okay, I am stopping anyway. Hello? Sumitra, thank you, sir. am I audible? Please put me an email, okay? Whatever you solved, you put me email, I will check later on. Yes, sir. Okay. Thank you for joining. I am stopping now, okay?